Hello everyone. Today we'll start from question number 18 of exercise 5.2. Till now we have done up to question number 17. Question number 18 is the sum of 4th and 8th term of an AP. दो terms का sum कौन कौन सी? 4th and 8th of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term. Sum of 6th and 10th term is 44. Find the first three terms of an AP. Now we will take the solution of this question. Question था कि sum of 4th and 8th term of an AP is 24. 4th term A4 plus A8 equals to 24. 4th term A plus 3D. 8th term A plus 7D equal to 24. Simplify किया 2A plus 10D equal to 24. We can see 2 common in all the terms. Dividing both sides by 2. What we get? A plus 5D equals to 12. And the second we are given 6th term and 10th term sum A6 plus A10. What is that equal to? 44. 6th term A plus 5D. 10th term A plus 9D equal to 44. So 2A plus 9 plus 5 14D, that is 44. Again I can see 2 common, so dividing throughout by 2 we get A plus 7D equal to 22. Equation number 2. Now by solving this pair we'll get the values of A and B. Which method we'll apply here? Obviously we are going to apply elimination method. Let's do 1 minus 2. You can also do 2 minus 1, that is up to you. Column method I'm applying. Subtract, sign change करना है. 5 minus 7 minus 2D, 12 minus 22 minus 10. So what D comes? 10 over 2, that is 5. Put this value of D in any one of the two equations. 1 में ले लेते हैं इसको. From 1, A plus 5 into D, that is 5 equal to 12. A plus 25 equal to 12. A is 12 minus 25. What is that equal to? Minus 13. So A is minus 13 and D is 5. What is asked? Find the first three terms of an AP. First three terms of an AP. First term तो ये रही. Here first term तो minus 13. Second term A plus D. A minus 13 plus 5, that is minus 8. And third term A plus 2D, that is minus 13 plus 2 into 5. Minus 13 plus 10, that is minus 3. So these are the first three terms of the given AP. Now we'll take the next question. Question number 19. It is Subba Rao started work in 1995. इस ईयर का ध्यान रखना प्लीज़, ये बड़े काम का है एंड में आंसर देने के लिए. एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000. उसकी एनुअल सैलरी ₹5000 थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. हर साल उसकी सैलरी ₹200 इंक्रीज होती है. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000. किस साल में उसकी इनकम 7000 होती है, ये इसने पूछा है. सबसे पहले तो सैलरी इन द फर्स्ट ईयर. विच वॉज द फर्स्ट ईयर? 1995. दैट इज ₹5000. सो सैलरी इन 1996 200 इंक्रीज हो जाएगी प्लस 200, दैट इज 5200. 5200. सो 200 एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, तो कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, तो अंडरस्टूड है. बट क्या बन रहा है? व्हाट इज फॉर्मिंग हियर? वी आर फॉर्मिंग एन AP. वी आर गेटिंग एन AP हियर. सो सैलरी इन 1997 सो इक्वल्स टू ₹52 plus 2, ऑब्वियसली 5400 एंड सो ऑन. देयरफॉर ये क्या बन रही है? सीक्वेंस AP बन रही है. देयरफॉर AP ऑफ सैलरीज. फर्स्ट टर्म क्या थी? 5000. सेकेंड 5200, 5200, 5400 एंड सो ऑन. सो अंडरस्टूड है कि 200 कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है. AP है, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो नाउ हियर AP है तो दो चीज़ें ले लें. A 5000 एंड D इज सेकेंड माइनस फर्स्ट, दैट इज 200 इटसेल्फ. ये A एंड D आ गया. ठीक है.
क्वेश्चन पूछा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, किस साल में उसकी इनकम 7000। देखो ये फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर आई मीन टू से 1995, ठीक है। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड में बात कर लेते हैं। सेकंड ईयर में इतनी, थर्ड ईयर में इतनी, ऐसे इंक्रीज हो रही है और जाके एक ईयर में 7000 भी बनेगी। इसने पूछा किस ईयर में वो 7000 बनेगी, ठीक है। मैंने क्या करना, आई विल अज्यूम कि वो nth ईयर में 7000 बनेगी। मीन्स व्हाट वी विल डू, वील अज्यूम लेट nth टर्म इज 7000, nth टर्म मान लिया इसको 7000। फ्रॉम देयर विल गेट वैल्यू ऑफ n, a plus n minus 1 into d, that is 7000, a is 5000 plus n minus 1 into d is 200 equals to 7000। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, we'll get the value of n from here, n minus 1 into 200, 5000 को उधर ट्रांसपोज कर लें, we get 2000 here, and अब 200 को उस साइड ले जाएं, n minus 1 is equal to 2000 अपॉन 200, कट के क्या मिला हमें, what we get 10, so n minus 1 equals to 10, what is n equal to 10 plus 1, that is 11, ठीक है। what is n equal to 11 means 11th ईयर में उसकी सैलरी 7000 होगी। 11th ईयर में, फर्स्ट ईयर में कितनी थी, फर्स्ट ईयर आई मीन टू से 1995, 96 में 5200, 97 में एंड सो ऑन 200 प्लस हो रही है। सो अब n इक्वल्स टू 11। अब ध्यान रखना जरा, 1995 से उसने जॉब स्टार्ट करी, ठीक है। अगर मुझे नंबर काउंट करने को बोला हो, हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 5 to 15, इफ वी आर आस्क्ड टू काउंट द नंबर फ्रॉम 5 to 15, आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 50 माइनस 5 10। एक्चुअल में 10 नहीं होते 5 to 15, आप काउंट करके देखना 11 होते हैं, ठीक है। सी लेट्स काउंट 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 15। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स होती हैं एक्चुअली फ्रॉम 5 to 15। जब भी ऐसे कोई काउंटिंग करनी हो ना आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में, फ्रॉम दिस टू दिस, तो हमेशा वो काउंटिंग में आप अपर से लोअर माइनस करना, ऐड 1 to दैट, उतने नंबर्स होते हैं वो, ठीक है। ऐड 1 to दैट, उतने नंबर्स होते हैं वो। 5 to 15 कितने नंबर्स हुए, 11। तो ऐसे ही 11th ईयर में उसकी होगी, तो 11th ईयर कौन सा होगा, 1995 से स्टार्ट होके, ठीक है। कर लिया काउंट, अभी बताया, इट विल बी, सो देयरफॉर जो सैलरी 7000 है ये किस ईयर में पहुंचेगी, 11th ईयर। 11th ईयर कौन सा है 1995 के बाद, इट इज इन 2005 में ये सैलरी रीच करेगी 7000। रिमेंबर 2005, ज्यादातर बच्चे सोचेंगे कि यहां से लेके यहां तक 10 ईयर्स हुई है, 10 नहीं है। हाउ मेनी आर दीज, ये 11 है, आपका डिफरेंस माइनस करेंगे, 10 प्लस 1 11। सो इन 2005 सैलरी विल रीच रुपीज 7000। Now we'll see the last question of this worksheet, question number 20. Question number 20 is Ramkali saved ₹5 in the first week of a year. साल के फर्स्ट वीक में कितना सेव करती है वो, ₹5, and then increased her weekly savings by ₹1.75. तो क्वार्टर टू 5 रुपीज़ वो हर वीक उसमें ऐड करती है। कांस्टेंट एडिशन हो रही है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये एपी बनेगी, ठीक है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, फाइंड n। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। nth वीक मीन्स ये nth टर्म दी है हमें उस एपी की, nth टर्म लेके हमें सिंपली n की वैल्यू निकालना है। नाउ सेविंग्स इन फर्स्ट वीक ₹5,
सेविंग्स इन सेकेंड वीक कितना इंक्रीज हुआ, बाय 1.75 रुपीज़ 6.75। सेविंग्स इन बस थर्ड तक लिखना एंड सो ऑन करके, फिर वो एपी बन ही रही है वीक। ठीक है, आपने इसमें करना क्या होता है, 2 ऐड कर दें, 0.5 माइनस कर दें, 2 ऐड किया है इसमें 8.75 8.50, सिंपल वे टू डू द कैलकुलेशंस। ठीक है, सो ऑब्वियसली कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है 1.75 का, तो एपी ही बनी है। देयरफॉर एपी ऑफ वीकली सेविंग्स, फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड 6.75, थर्ड 8.50 एंड सो ऑन। एपी है तो मैं दो चीज़ें यहाँ से लेने वाला हूँ पहले, ए एंड डी। ए इज़ 5, डी इज़ ऑब्वियसली 1.75। अब हमें सीधा दे रखा है nth वीक में सेविंग्स इतनी है, तो दैट मीन्स ये nth टर्म है एपी की। नाउ इट इज़ गिवन दैट कि nth टर्म 20.75 है, यहाँ से मैंने n की वैल्यू निकाल लेना है। सो ए एंड डी की वैल्यूज़ पुट कर दें। डेसिमल की कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा ध्यान से करना होता है। ए 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 1.75, 20.75। 5 को ले जाएं उधर, पहले 5 को ट्रांसपोज कर दूं, n-1 इंटू 1.75, इसमें ब्रैकेट लगाना है लगा दो, नहीं लगाना है कोई दिक्कत नहीं है। 20.75 माइनस 5, दैट इज़ 15.75। सो n-1 इंटू 1.75। अब 1.75 को उधर ले जाएं, फिर हम उसकी कैंसिलेशन कर लेंगे। n-1 इक्वल टू 15.75 ओवर 1.75। न्यूमरेटर में कितने डेसिमल्स, 2, डिनोमिनेटर में कितने डेसिमल्स, 2, डेसिमल से डेसिमल गोज़, तो बना ये 1575 अपॉन 175। पहले छोटा करके काट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 5 से काट लें, 5 3 ज़ा 15, 2 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, एक बार फिर से 5 से काट लें, 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 1 5, 5 3 ज़ा। ठीक है, अब ये पूरा कट गया। So what we get, n-1 equal to 9. So what is n? 9 plus 1, that is 10. बस इसमें सिर्फ n की वैल्यू निकालने को बोला था। n कितना आया, 10। With this worksheet is complete. तो आपने सारी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है, और कोई भी डाउट है इस पूरी वर्कशीट में जो हमने कंप्लीट की है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सो दैट मैं आपको उसका सॉल्यूशंस भेज सकूं। थैंक यू।